Student, welcome you all. So today I am going to take up a very new topic from the grammar, that is writing a descriptive paragraph, and it is in your term second syllabus. So as you all know that in term first we have already done the descriptive paragraph, but in that descriptive paragraph we have done like a person descriptive paragraph, right? Because there are a lot of descriptive paragraphs. So first term में हमने person से related descriptive paragraph सीखे थे. So now we'll start a descriptive paragraph about diary writing. So in this in this particular video we will see कि how to write a diary writing. All right. In a manner of descriptive paragraph. ठीक है, descriptive paragraph like event से related भी होते हैं, हमारे person से related भी होते हैं, diary entry से related भी होते हैं. So हम diary entry ही आज सीखने जा रहे हैं. All right, let's start. So what we will see in this video about diary writing, let's see what we are going to discuss or what we are going to read. So first is what is diary writing. So we'll see कि diary writing actually होता क्या है. Next we'll see how to write a diary writing, right? कि हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका format कैसा होगा, then the format of diary writing, right? See, first हम देखेंगे कि what we need, what we kind of basic skills that we need to write a diary, right? And then we will see or we will understand and we will learn that the format of diary writing. Next is there are some solve examples also जो मैं आपको इसी particular video में we will discuss, and I will give you some questions for practice in PDF. All right, not in this video but PDF में मैं आपको कुछ practice के कुछ questions दूंगी, solved and unsolved both. All right. So basically first we'll see कि what is diary writing. So a diary what is diary entry. Basically हम diary entries में क्या क्या लिखते हैं, क्या होता है, let's see. A diary entry is a short composition. It is usually an entry of the writer's feeling or a brief summary of what happens in his or her life. So देखो डायरी एंट्री क्या होता है, एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है, राइट? हम इसमें क्या डालते हैं, जो भी हमारी राइटर्स मीन्स दोज हु राइट डायरी राइटिंग, उनकी जो फीलिंग्स होती है और जो ब्रीफ समरी होती है, व्हाट हैपन विद देम. ठीक है, कि जैसे सपोज मैं हूँ, अब मैं अपनी डायरी राइटिंग लिख रही हूँ तो आई एम द राइटर, राइट? इफ़ आई एम राइटर डायरी राइटिंग तो मैं ही राइटर रही, तो मैं अपने फीलिंग्स और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी थ्रू द डायरी राइटिंग और थ्रू द डायरी एंट्री. अंडरस्टैंड? सो इट इज़ अ हैंड रिटन रिपोर्टिंग ऑफ वॉट टुक प्लेस ओवर अ सर्टेन पीरियड. सो ऑब्वियस है, ये एक हैंड रिटन एक रिपोर्टिंग होगी कि डायरी है, हम खुद लिखते हैं, राइट? अब ये जो हैंड रिटन रिपोर्टिंग होगी, जो भी हमने एक सर्टेन पीरियड में देखा है, जो भी कुछ हुआ है, वी जस्ट pour into a diary, that is called a diary entry. All right, so now we'll see कि diary entries के कुछ skills होते हैं, right? कैसे उसको लिखा जाएगा, क्या करा जाएगा, हम इसमें देखेंगे, राइट? जैसे अब थ्रू द डायरी राइटिंग हमें देखेंगे हाउ कैन वी इम्प्रूव द डायरी राइटिंग स्किल्स, बेसिक स्किल्स, एंड और मीन्स थ्रू द डायरी राइटिंग ना यू विल pour your heart out, right? क्योंकि हम जब किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं, या you know if we don't have enough friends, या एक true friends अगर हमारा नहीं है, या हम अपनी बात शेयर करने में hesitate होते हैं, so this is a very good option to write everything in diary. But diary it doesn't mean दैट आप कुछ भी लिख दो. जैसे डेली रूटीन, सपोज हमें अभी मैगी खाने का मन है तो हम मैगी बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमें बहुत अच्छी लग रही है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक बुलशिट अगर आप उसे अपनी डायरीज में लिखते हो. तो डायरी में लिखने का ये मतलब है कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी एसेंशियल, और जब आप उस डायरी को दोबारा पढ़ो तो यू विल एंजॉय
एंड आपको पता चलेगा कि आपने अपने डेली रूटीन्स में क्या किया था या अपनी लाइफ में क्या हुआ था इन द पास्ट. ऑलराइट. सो देर आर सम बेसिक थिंग्स जो हमें डायरी राइटिंग में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. द फर्स्ट इज डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग. सो सी यू ऑल नो वेरी वेल कि अगर डायरी राइटिंग आप लिख रहे हो, सपोज मैं डायरी लिख रही हूँ, ठीक है, तो इट इज़ अ पर्सनल थिंग फॉर मी. ये मेरी पर्सनल, मैं लिख रही हूँ, आई मी माई सेल्फ, राइट. सो ये एक मेरे लिए हो गई एंड इट्स इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग. इसे फॉर्मल नहीं कहेंगे, इनफॉर्मल कहेंगे, बिकॉज जब हम अपने बारे में लिख रहे हो, डायरी हमारे लिए है, तो हम इसमें इनफॉर्मल चीज़ें लिखेंगे, राइट. इसमें कुछ फॉर्मल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसमें इनफॉर्मल कैटेगरीज लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज a diary writing can be based on an experience, a scene, a description or narration of certain event. It is a very obvious thing कि डायरी राइटिंग हमारे एक्सपीरियंस पे ही तो बेस्ड होती है. सी वॉट एवर वी डिड इन टुडे, राइट. तो हम मीन्स वॉट एवर वी डू इन टुडे हम लिखेंगे वो मीन्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट. दैट लाइक वी डिड सो एंड सो थिंग्स, आई डिड दिस एंड दैट. सो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है. कोई सीन होते हैं, पर्टिकुलर सीन या किसी चीज़ का हमें डिस्क्रिप्शन देना है, पर्टिकुलर पर्सन का डिस्क्राइब करना है, किसी चीज़ को नरेट करना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कैन राइट इन अ डायरी. और कोई सर्टेन इवेंट, सपोज हम कोई फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, राइट. बहुत एजुकेशनल फंक्शंस था, वो कुछ सेरेमनी थी और उसे हम अटेंड करके आ रहे हैं और हमने वहाँ पे क्या क्या सीखा, वहाँ पे क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम किस में लिख सकते हैं, डायरीज में. और एनी अदर थिंग्स और एक्टिविटी दैट द राइटर कंसिडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरीज. सी हम अनवर्दी चीज़ें नहीं लिखेंगे, मीन्स जो राइटर को लगता है कि कोई भी एक्टिविटी और कुछ ऐसी थिंग जो उसको अच्छी लगी है, तो वो राइटर कंसिडर करता है कि इट इज़ अ वर्थ थिंग टू राइट इन अ पर्सनल डायरी, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं, राइट. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि राइटिंग जो होती है, डायरी राइटिंग होती है, इट शुड बी वेरी वर्थफुल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, नैरेटिव होनी चाहिए. ऑल राइट. Next is, in the examination, the question on diary writing is aimed to test your imaginative, creative and expressive skill. अब सी, अगर आपके एग्जामिनेशन पे डायरी राइटिंग पे कोई क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन क्यों आता है? दे मीन्स योर टीचर्स एंड योर एल्डर्स जस्ट टेस्ट योर इमेजिनेशन पावर, ठीक है. हाउ इमेजिनेटिव पर्सन यू आर, हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ यू कैन एक्सप्रेसिव योर स्किल्स थ्रू डायरी राइटिंग. बिकॉज डायरी राइटिंग में आप खुद अपने और से सब कुछ लिखते हो, ठीक है. नथिंग इज गिवन टू यू, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो, ठीक है. एंड आप कितनी मीन्स सपोज आपने कोई इवेंट किया है, राइट, इवेंट अटेंड किया है, उस इवेंट के बाद मीन्स एट द एंड ऑफ द इवेंट यू हैव टू राइट अ डायरी अबाउट दैट इवेंट. सो आप क्या करोगे, अपनी इमेजिनेशन पावर को वहाँ पे यूज़ करोगे एंड राइट अ डायरी. एंड क्रिएटिविटी यूज़ करोगी कि कितना क्रिएटिव आप अपनी राइटिंग को बना सकते हो. यूज सम गुड वर्ड्स, गुड लाइन्स, राइट. एंड एक्सप्रेसिव स्किल मीन्स आप कितने एक्सप्रेसिव हो अपनी चीज़ें कन्वे करने के लिए, अपनी बात कन्वे करने के लिए. आप डायरी में भी अगर किसी चीज़ लिख रहे हो तो वहाँ पे एक्सप्रेसिव स्किल्स ईजिली दिखाई देती है. अंडरस्टैंड. तो द बेसिक थिंग्स इफ़ यू वांट टू राइट अ डायरी और सीखनी है, तो उसका एक एम होता है कि बेसिकली 3 थिंग्स होती है, दैट यू आर वेरी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव. मीन्स आपको इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और आपके जो एक्सप्रेस करने की स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो देर आर सम गाइडलाइंस फॉर डायरी राइटिंग, राइट. अब कुछ गाइडलाइंस भी हम देख लेते हैं. अ डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाउ एवर अ गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर. सी, डायरी एंट्री का कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो, खुद के लिए डायरी लिख रहे हो. ऑफकोर्स आप खुद के लिए लिख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि डायरी किसी और के लिए लिख रहे हो, राइट. तो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है इट्स क्वाइट ईजी, बहुत ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं जिसको आपको फॉलो करना रहेगा. लेट्स सी कि व्हाट आर द गाइडलाइंस. फर्स्ट इज
a good diary writing contains the place, the date, the day and even the time of writing. So जब भी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जब भी आपको डायरी राइटिंग लिखना है तो you should write means you must write the place, the date and day and the time also. There are some means specific things that you have to mention in your diary, राइट. प्लेस आप लिखोगे कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लाइक जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लिखा हमने आगरा, तो डैट इज़ अ प्लेस. अब जो डेट है मीन्स आप डायरी कब लिख रहे हो, राइट. तो डेट डाल दी हमने, सपोज 20 जुलाई लिख दी एंड ईयर कुछ भी जो भी वॉट एवर द डेट दैट टाइम वो आपको यहाँ मेंशन करनी है. एंड द डे सपोज हमने लिखा है फ्राइडे तो फ्राइडे लिख दिया, मीन्स जो भी डे हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वॉट एवर द डे आपको वहाँ मेंशन करना है. एंड टाइम मीन्स जो भी टाइम हुआ, जैसे इन्होंने 8 PM यहाँ पे मेंशन है, तो जो भी टाइम है जब आप डायरी लिख रहे हो वो आपको टाइम लिखना है. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखनी है कि आपको प्लेस, डेट, डे एंड टाइम, ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अ डायरी. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज a diary doesn't need any formal heading, however it is optional. If you want you can give a suitable heading. देखो अब डायरी राइटिंग को एक फॉर्मल हेडिंग की नीड नहीं होती है. अंडरस्टैंड. मीन्स अगर हम कोई भी डायरी राइटिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो अब उसकी हेडिंग तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए लिखेंगे. सपोज मैं आज एक सेरेमनी अटेंड करके आई हूँ, ठीक है, और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मैं उसमें लिखूंगी, तो मैं उसमें एक हेडिंग पुट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम बहुत इनफॉर्मल वे में उसको लिखेंगे. बट इट इज़ ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस. इफ़ यू वांट और इफ़ योर टीचर्स वांट कि वो चाहते हैं कि आप एक हेडिंग लिखें तो यू कैन राइट, ठीक है, और आप लिख सकते हैं. एंड प्लीज़ गिव सम सूटेबल हेडिंग, राइट. बट देर इज़ नो नीड टू राइट एनी हेडिंग, क्योंकि नेसेसरी नहीं होती है बिकॉज जो डायरी राइटिंग है वो बहुत पर्सनलाइज्ड होती है, खुद के लिए होती है. ऑल राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टाइल एंड द टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल. देखो जब हम डायरी राइटिंग अपने बारे में लिख रहे हैं, खुद के लिए लिख रहे हैं, तो इट्स टोन एंड स्टाइल इज ऑल्सो वेरी जनरल एंड इनफॉर्मल, राइट. हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. देखो मे बी डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट पर, बट फिर भी वो क्या होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए. समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू. मीन्स जो टोन है वो फिलोसफिकल भी हो सकती है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है, डजंट matter. So you can freely express your viewpoints and feelings. So here you are free to express your points, your feelings, because nobody warned you या nobody observe you या nobody disturb you कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे ये चीज़ गलत है. नो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डायरी. सो आप उसमें इनफॉर्मल लिख सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज एज द डायरी इज राइटर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट. सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि डायरी राइटिंग आपकी पर्सनल थिंग है, राइट. आप अपने लिए लिख रहे हो तो इट्स अ पर्सनल डॉक्यूमेंट. सो द डायरी एंट्री डजंट मीन एनी सिग्नेचर. देखो डायरी एंट्री कोई एनी सिग्नेचर नहीं मानती, इट्स टोटली ऑप्शनल. बट ये टोटली ऑप्शनल होती है, बट एग्जाम्स में जब आप करोगे तो इसमें सिग्नेचर मस्ट है, आपको सिग्नेचर करने हैं, राइट. Otherwise you no need to do any signature in diary writing. So you can involve your own suitable style depending on the topic of your writing. कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना फॉन्ट साइज हम चेंज कर रहे हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, कर्सिव है, सिंपल है. सो इट्स अप टू यू, वट एवर यू लाइक यू कैन राइट द डायरी और मीन्स यू कैन डू इट, जो भी आपको पसंद हो. Now there are some essential characteristics of the diary. अब यहाँ पे कुछ characteristics हैं जो डायरी में आपको याद रखने हैं. So one by one we will see. The first is it should be written in chronological order. Chronological order होता है 1 by 1, ठीक है, लाइन बाई. जैसे हम क्लासेस पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास पहले होती है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड. सो स्टेप बाय स्टेप्स वी मूव फॉरवर्ड. तो दैट इज वाई द डायरी राइटिंग शुड बी in a very chronological manner, should be in order. So next thing, the day. So these points you all have to remember because these are very essential points. So the day, date, place and time of entry in the diary should be included. ये already मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत important है और ये होनी चाहिए.
नेक्स्ट इज द मेन बॉडी ऑफ द डायरी शुड बी रिटन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. कॉम्प्रिहेंसिव मैनर जस्ट लाइक अ पैराग्राफ में आपको लिखनी है इन अ वेरी इनफॉर्मल वे. गिव अ प्रिसाइज येट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, प्लेस और अ पर्सन. जो भी इवेंट है, प्लेस है, पर्सन है, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से डिस्क्राइब करना है. Next is it should express the writer's point of view, the lay stress on feelings and emotions rather than on the event itself. देखो अब देखो क्या होता है कि ये एक्सप्रेस करते हैं राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू. आपको स्ट्रेस किस पर देना है? ऑन द फीलिंग और इमोशंस ऑफ द राइटर रादर देन द इवेंट इटसेल्फ. कि इवेंट के बारे में आप लिखते जा रहे हो, बट जो राइटर है उसके फीलिंग्स और इमोशंस भी किस में होने चाहिए? डायरी में होने चाहिए. पर्टिकुलर इवेंट्स वो क्या फील कर रहा है, उसके से किस तरीके से वो रिलेट कर पा रहा है, वो क्यों लिख रहा है, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी. नेक्स्ट इज द राइटर शुड बी इंफॉर्मेटिव एज इट इज अ स्पॉन्टेनियस पीस ऑफ राइटिंग. तो देखो जो राइटर होगा उसको बहुत इंफॉर्मेटिव रहना पड़ेगा. मीन्स जो भी वो लिख रहा है उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जब भी आप पढ़ो या कोई और आपकी राइटिंग को पढ़े, डायरी राइटिंग को, तो उसको ईजिली वो अंडरस्टैंड कर पाए कि वॉट यू वॉन्ट टू राइट. सो स्पॉन्टेनियस मीन्स कि इट इज़ अ वेरी नेचुरल पीस ऑफ राइटिंग. बहुत नेचुरल होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में आपने उस इवेंट को ज्वाइन किया है, उस सेरेमनी को ज्वाइन किया है. पर्टिकुलर कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो बहुत स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. अ सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द डेज डायरी एंट्री कैन बी गिवन टू द ऑथेंटिकेट इट एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. देखो डायरी राइटिंग पे सिग्नेचर्स मस्ट नहीं होते हैं, बट सिग्नेचर इसलिए किए जाते हैं टू शो द ऑथेंटिकेटेड, टू शो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द राइटिंग, राइट, कि कितनी वो रियल है, कितनी असली है, जस्ट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. कि जब भी कोई उस डायरी को देखे और उसका अगर सिग्नेचर किसी का मिले, इट मीन्स हमको वो ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि यस पर्टिकुलर पर्सन ने ही वो डायरी लिखी है. अंडरस्टैंड? सो नाउ देयर इज सम फॉर्मेट जो डायरी राइटिंग में हमारे को समझ में आना चाहिए. सो देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये एक फॉर्मेट है. हम इस जो ये क्वेश्चन और आंसर इसका दे रखा है पूरा डायरी, इसको हम रीड नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम रीड करने वाले हैं. सो फर्स्ट देखो क्या होगा, ये डायरी राइटिंग का फॉर्मेट होगा. फर्स्ट ये तो क्वेश्चन दे रखा है, राइट. नेक्स्ट इज देखो मैंने यहाँ पे बड़ा भी आपको दिखा रखा है, शो भी कर रखा है, कुछ फॉन्ट साइज चेंज करके यहाँ पे बड़े में भी, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे है. शॉर्ट फॉर्म नहीं है बट थोड़ा साइज छोटा है इसका. तो अगर आपको यहाँ पे ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन सी हेयर. ऑलराइट, ये बॉडी है एंड सिग्नेचर एंड नेम. सो फर्स्ट यू जस्ट पुट, फर्स्ट आपको क्या पुट करना है? डे एंड डेट. सबसे पहले मीन्स जब भी आप डायरी लिखोगे तो आपको डे एंड डेट लिखनी है. देन आप यहाँ पे पुट करोगे टाइम, द वेरी नेक्स्ट लाइन. देन यू जस्ट पुट द सैल्यूटेशन, एंड सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे? जस्ट डियर डायरी. हमेशा हम क्या लिखेंगे? डियर डायरी. तो अब क्या करना है आपको? लाइक डे डेट एंड टाइम, जस्ट डे एंड टाइम के जस्ट बाद लीव द स्पेस. यहाँ पे आपको एक स्पेस लीव करनी है. एंड आफ्टर सैल्यूटेशन यू जस्ट लीव वन लाइन, एंड सॉरी नॉट लीव अ लाइन, जस्ट राइट द बॉडी. ये होल बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी. एंड एट द एंड यू जस्ट साइन हेयर. ऑलराइट, सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट, राइट. इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके फॉर्मेट में. नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. You recently visited the 24th Crafts Mela at सूरज कुंड फरीदाबाद. मीन्स यू, जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग के बारे में है. आप अभी रिसेंटली जो 24th क्राफ्ट्स मेला है वहाँ पे जाकर आए हो. कहाँ पे हो रहा है ये? सूरज कुंड फरीदाबाद के सूरज कुंड में. ऑलराइट, इट वॉज मिनी इंडिया असेंबल एट वन प्लेस. ये क्या है? एक मिनी इंडिया है जो एक ही जगह पे आया है, राइट. एक ही जगह पे इसे एग्जाम्पल किया, इसे मिनी इंडिया कंसिडर किया जाता है. यूजिंग द हिंट्स मेक अ डायरी ऑफ व्हाट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर. सो कुछ हिंट्स आपको यहाँ पे गिवन है. यूज दैट हिंट्स और आप एक डायरी मेक कीजिए और आप जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. लेट्स सी हिंट्स क्या है. मोर देन 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड. मीन्स हम ये देख सकते हैं थ्रू द हिंट कि कुछ 20 स्टेट्स हैं इंडिया के जो वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. फर्स्ट है राजस्थान, द थीम स्टेट, पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज.
राइट। एक थीम स्टेट है जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है कुछ फॉरेन कंट्रीज, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, डांस हो रहा है एट चौपाल, चौपाल एक बड़ा चबूतरा होता है उस पर, एंड द रंगमंच प्रोग्राम हो रहे हैं, फूड कोर्ट्स, केटरिंग, ऑल काइंड्स ऑफ फूड कोर्ट्स है, केटरिंग है जहाँ पे आपको यू कैन फाइंड ऑल द काइंड्स ऑफ फूड, आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं फ्रॉम द अवॉर्डेड आर्टिसंस, और कुछ अवार्ड्स भी वहाँ पे गिवन है। नाउ सी कि हाउ वी राइट अ डायरी राइटिंग। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू जस्ट राइट फर्स्ट थिंग द प्लेस। देखो इफ द प्लेस इज गिवन इन योर क्वेश्चन देन आप वो लिखोगे, अगर कुछ भी नहीं तो अपने मन से लिख सकते हो। तो न्यू दिल्ली हमने लिखा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे पुट की डेट, राइट, डेट के बाद हमने मंडे और यहाँ पे टाइम पुट किया। देखो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आप मंडे पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। देन जस्ट लीव दिस स्पेस, एक लीव स्पेस करी, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे डायरी राइटिंग। ऑल राइट, देन वी जस्ट स्टार्ट द बॉडी ऑफ द डायरी। सो द क्राफ्ट्स मेला एट सूरज कुंड वॉज, एंड ग्रामेटिकली आपको करेक्ट होना है, ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं मतलब आपको अच्छे से लिखना है। सो द क्राफ्ट्स मेला एट सूरज कुंड वॉज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रैंड देन व्हाट आई हैड इमेजिन। सो यहाँ पे जो भी राइटिंग लिख रहा है वो कह रहा है कि जितना मैंने सोचा था उससे बेटर जो क्राफ्ट मिला जो सूरज कुंड में हेल्ड हुआ है, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव था। दिस ईयर द थीम स्टेट वॉज राजस्थान, और जो इधर इस ईयर पे जो थीम स्टेट थी वो कौन सी स्टेट थी? राजस्थान, मतलब उस सूरज कुंड में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया गया था। द होल कैंपस वॉज पेंटेड विद द विजुअल्स ऑफ रणथंबोर, चित्तौड़, जोधपुर एंड जैसलमेर। मतलब पूरा जो कैंपस है वो किससे भरा हुआ था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पेंट की गई थी, लाइक रणथंबोर राजस्थान का पार्ट है, चित्तौड़, जोधपुर एंड जैसलमेर। इट वॉज मिनी इंडिया एग्जाम्बल्ड ऑन अ फ्यू हंड्रेड एक्रेज ऑफ लैंड। ये एक मिनी इंडिया है जो एग्जाम्बल की थी बहुत बड़े लैंड में। ऑल द अवॉर्डेड आर्टिसंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स हैज सेट अप देयर वर्कशॉप्स एंड स्टॉल देयर, मीन जो भी अवॉर्डेड आर्टिसंस हैं वहाँ पे डिफरेंट स्टेट से आए हैं, और बहुत सारे वर्कशॉप्स थे, स्टॉल्स थी जो अपने डिफरेंट सेटअप लगा के वहाँ पे बैठे थे। Many countries, more particularly Pakistan, Nepal and Afghanistan, give it an international look। और बहुत सारी कंट्रीज थी जैसे लाइक पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान, वहाँ पे एक इंटरनेशनल लुक भी उनको दिया गया था, शो किया गया था वहाँ पे कि ये बिल्कुल पास में है ये सब। एंड बैंगल्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, पर्सेस, शू, साड़ीज, गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, देखो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे थी, ठीक है। और दीज थिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव, और ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं किसको? जो विजिटर्स होते हैं उनको। फाउंड 1000 ऑफ बायर्स, मीन्स यहाँ पे बहुत 1000 ऑफ बायर्स हैं जो इसको ले रहे हैं। एवरी इवनिंग देयर वर कल्चर शोज एट द चौपाल एंड द रंगमंच। हर इवनिंग में कल्चरल शोज होते हैं, डांस वांस जो भी राजस्थानी कल्चर फॉलो करते हैं, उसमें चौपाल और रंगमंच में वो सब प्रोग्राम होते हैं। द फूड कोर्ट प्रोवाइडेड ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस फॉर फूड लवर्स, मीन सारे जो भी फूड लवर्स होते हैं सब लोग फूड लवर्स होते हैं, मीन्स एवरीवन लव टू ईट, राइट। if I'm talking about me, I actually I live to eat, so जो भी फूड लवर्स हैं उनके लिए बहुत डिलीशियस फूड वहाँ पे है। बेसिकली इट वाज इंडिया इन ऑल इट्स कलर्स, टेस्ट एंड साउंड। देखो बेसिकली एक इंडिया है जिसमें सारे कलर्स हैं, टेस्ट एंड साउंड्स हैं, स्कैटर्ड ऑन द अरावली हिल्स, जो फैले हुए हैं कहाँ पे? ऑन द अरावली हिल्स। और दिस राइटिंग रिटन बाय समीर, तो यहाँ पे समीर का नेम गिवन है। अगर क्वेश्चन में समीर है तो वहाँ पे भी आप नेम लिख सकते हैं, और कोई और नेम है तो आप लिखेंगे। इफ देयर इज नो नेम देन नो नीड टू साइन योर नेम, ठीक है, आप अपने नेम से साइन नहीं कर सकते, जस्ट पुट ABC, ऑल राइट, या XYZ। सो with this we come to an end of the diary writing. I hope you all have must understood this part or this video. So thank you for watching this video.